Hello students, I welcome each one of you to my this channel E-Political Science, and today I am going to discuss with you all a very important topic, and this topic is based on your syllabus, that is conflict and peace building, and it is also applicable for peace and conflict resolution for honors courses. And before starting this topic, I would just like to share with you that this paper, Conflict and Peace Building, which is offered in program and honors as Conflict and Peace Resolution, is very important from the point of view that if this course also offers master's program in different institutes, for example in TIS also. TIS has different campuses which is very prominent in giving you a placement also, for example Mumbai and Guwahati campus, which is very famous, and a few of my students, they have got placed through this a particular course and institute. So if you are studying this paper in SEC or in anywhere else also, it is very helpful from the point of view that you can enroll in different courses, different internship program, and get benefited in the long run. So this paper is very beneficial from the long term perspective. Okay, so very very hello to everyone, and so let us start with this topic of conflict and peace building. So first this topic today which I have brought is what is negative peace and positive peace, and the difference between the negative and the positive peace, and why negative and positive peace is important from your exam point of view, which is now being done through offline mode. And in offline mode you have to be very prepared. So for being prepared, what is required is not just ratification but also understanding of the concept. So this is what you can try that your basic understanding is clear, and you can also refer to NCERT 11th NCERT Political Theory, Introduction to Political Theory, which has a chapter on peace. So it can build your basics, your horizons, both in Hindi and English medium. You can get it. So this question has already been asked students regarding the difference between negative and positive peace, or you can explain the negative and positive peace with examples. So let us first try to understand what exactly all of you must be knowing what is peace and what is violence, what is conflict. Okay, and before that the idea of structural violence and direct violence. So how we can relate with structural violence and direct violence, and how they are interrelated to each other, and are they complementary or antagonistic, कि क्या ये जो एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के विरोधाभास हैं, इस बात को भी हमें समझने की ज़रूरत है. तो पहला, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नेगेटिव पीस पुट्स एम्फेसिस ऑन द एब्सेंस ऑफ मैनिफेस्ट वायलेंस सच एज वॉर, फिजिकल फोर्स एक्सेट्रा. नकारात्मक शांति प्रकट हिंसा जैसे युद्ध, शारीरिक बल आदि की अनुपस्थिति पर जोर देती है. ठीक है. दूसरा जो नेगेटिव पीस का आधार है वो है इट कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट वायलेंस. इसे प्रत्यक्ष हिंसा से भी जोड़ा जा सकता है. अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी में आपने पढ़ा भी होगा नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव राइट्स, पॉजिटिव राइट्स, तो जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट में नेगेटिव शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं या नेगेटिव शब्द का यूज़ होता है, तो वहाँ पे क्लियरली मतलब होता है कि ओवरऑल ये एक नेगेटिव परसेप्शंस पे फोकस करता है, ना कि पॉजिटिव परसेप्शन पे. तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव परसेप्शन को लेके ये काम कर रहा है कि पीस का जो मतलब है अकॉर्डिंग टू नेगेटिव आइडिया इज़ वेरी कंस्ट्रेन, इज़ नॉट अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ वेरी यू कैन से नैरोअर अंडरस्टैंडिंग, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ वेरी क्लियर कट, जो लोगों को दिखता है प्रत्यक्ष रूप से कि वायलेंस नहीं होना, वॉर का नहीं होना, फिज़िकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर होना, कोर्सन का इस्तेमाल नहीं होना.
ठीक है, जैसे अभी हम फ़िलहाल देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है और अभी तक ये चल रहा है, तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से हम सब लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो वॉर है, जो दैट इज़ क्लियरली सीन, इट इज़ एन दिस इज़ नोन एज नेगेटिव पीस। ठीक है, और इस नकारात्मक आधार जो है, शांति का आधार जो है, उसको किस स्कॉलर ने फोकस किया? दैट वाज फोकस्ड बाय केनेथ बोल्डिंग। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव पीस है कि अगर पीस इस्टेब्लिश करना है तो उसका मतलब है कि वॉलेंस नहीं होना है, क्लियर मैनिफेस्टेशन ऑफ वॉलेंस नहीं होना, वॉर नहीं होना, फिजिकल फोर्स नहीं होना। ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है नेगेटिव पीस का। ठीक है, हालांकि पीस इसमें भी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है कि नेगेटिव पीस है, तो उसका मतलब उसकी नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग से नहीं है, उसका मतलब है उसके लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से। ऐसा ही नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में भी होता है, क्योंकि नेगेटिव लिबर्टी में हम एकदम समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से, हाँ, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब एब्सेंस है, वॉलेंस होगा ही नहीं, और जो वॉलेंस होगा वो वॉर और फिजिकल फोर्स जो क्लियर मैनिफेस्टेशन है उसके आधार पर नेगेटिव पीस की अंडरस्टैंडिंग है। तो दैट इज़ अ वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. Now, when we move to the positive idea of peace, yeah, positive understanding of peace, now it is based on a broad understanding of social conditions, which means the removal of structural violence beyond merely the absence of direct violence. ठीक है, अब सामाजिक परिस्थितियों की व्यापक समझ पर आधारित है ये। इसका अर्थ केवल प्रत्यक्ष हिंसा की अनुपस्थिति से नहीं है, बल्कि संरचनात्मक हिंसा को हटाना भी है। अब ये जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज द टर्म स्ट्रक्चरल वायलेंस और डायरेक्ट वायलेंस, इस पे भी अलग क्वेश्चंस आ चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग में, और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, यह आपके फर्स्ट जो यूनिट है उसमें से रिलेटेड है। तो ये जब हम कहते हैं कि रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, संरचनात्मक की जब हम संरचना की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं डीप रूटेड आइडिया ऑफ वायलेंस, जिसकी वजह से वायलेंस हो रहा है, जड़ें जिसकी काफ़ी मजबूत हैं, उस कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की हम बात करते हैं, और ना कि एक लिमिटेड और एक कंस्ट्रेंट आधार को हम लेके नहीं चलते। हम उसके जो है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को लेके हम चलते हैं। तो दूसरा जो आइडिया है जो हम पॉजिटिव पीस से एसोसिएट कर सकते हैं, दैट इज़ द इंक्लूसिव आइडिया ऑफ पीस, विच फोकसेस ऑन मैनी इश्यूज, मैनी इंपॉर्टेंट इश्यूज, मैनी डेवलपमेंटल इश्यूज दैट इन्फ्लुएंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, फ्रीडम, सोशल इक्वालिटी, ऑटोनॉमी एंड पार्टिसिपेशन। शांति का समावेशी विचार, क्योंकि समावेशी खुद में एक बहुत बड़ा आधार है। आज हर जगह, हर एजेंडे, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर जो है डेवलपमेंट के मैनिफेस्टो में इस आधार को फोकस किया गया, इंक्लूजन को। तो ये जब हम पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीस की बात करते हैं, तो इंक्लूसिव आइडिया, डेवलपमेंटल आइडिया ऑफ पीस इज फोकस मोर ऑन। ठीक है, तो शांति का समावेशी विचार कई मुद्दों पर केंद्रित है, जो जीवन की गुणवत्ता, स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, स्वायत्तता और भागीदारी को प्रभावित करते हैं। और ये सारे जितने भी कोर मोरल वैल्यूज़ हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, मोरालिटी की हम बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, वेलफेयरिज्म की बात करते हैं, सब कुछ इंक्लूजन से जोड़ा गया है, और इसको हम एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीस के संदर्भ में समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये किस स्कॉलर के साथ ज़्यादा हम एसोसिएट कर सकते हैं? तो जोहान गैल्टुंग का जो आइडिया है ऑफ पीस, और इनका आपने ABC ट्रायंगल पढ़ाई होगा, और मैंने भी क्लास में भी करवाया था एट डन। So if I get time, I will try to make a video on that also thing. And then जो चौथा मेन इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पीस का जो आइडिया है, that it is closer to structural violence. स्ट्रक्चरल वायलेंस की बात करता है कि जब तक हम डीप रूटेड जो कारण है कॉन्फ्लिक्ट का, वायलेंस का, क्लैशेस का और द्वेष का, जब तक हम समाज में, सोसाइटी में, द ग्लोबल लेवल हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, ये स्ट्रैटेजिकल हम वर्कआउट नहीं करते, तब तक हम पॉजिटिव पीस नहीं अचीव कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग को ये फोकस करता है। सो व्हेनेवर यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन ऑन डिस्कस द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस,
Okay, so what you are supposed to do, first of all you need to define what is peace in general. आप different scholars का interpretations दे सकते हैं, उनकी understanding दे सकते हैं, in general भी समझा सकते हैं शांति का आधार क्या है और शांति क्यों उसकी आवश्यकता क्यों है. ठीक है, थोड़ा आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके बाद आप नेगेटिव आइडिया ऑफ पीस उसको समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए प्रॉपर, और एक्सप्लेन के साथ साथ एग्जांपल्स भी दीजिए, जैसा मैंने आपको एग्जांपल्स दिया. उसके बाद आप पॉजिटिव पीस को बताइए, पॉजिटिव पीस को एग्जांपल्स दीजिए, उन दोनों को कंपेयर करिए और फिर ये बताइए जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव पीस की बात करते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं. ये बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चरल वायलेंस को हटाने की बात करते हैं तो हम इसका ये मतलब नहीं है कि हम डायरेक्ट वायलेंस को नहीं हटाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो वायलेंस है, जो डायरेक्ट हो रहा है, उसको तो हमें हटाना ही है, उसको तो हमें कम करना ही है. क्योंकि हमें कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है, हमें वायलेंस को कम करना है. पर उसके साथ साथ जो इतने समय से ये वायलेंस हो रहा है, इतने स्केल पे हो रहा है, लार्जर स्केल पे हो रहा है और अब तक हो रहा है, तो उसका डीप रूटेड जो कारण है, जो स्ट्रक्चरल और सिस्टमेटिक कॉज है, उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है. और उसको समझेंगे जब हम, तब हम दोनों ही बातों को फोकस कर पाएंगे. यानी कि जब हम नेगेटिव पीस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव पीस भी इन्वॉल्व होना चाहिए, और कई बार इन्वॉल्व होता भी है, और अगर नहीं इन्वॉल्व होता है तो हमें इन्वॉल्व करना चाहिए. और तभी हम कह सकते हैं कि नेगेटिव पीस एंड पॉजिटिव पीस, दे आर वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड दे कैन नॉट बी सीन इन आइसोलेशन ऑफ वन अनदर, कि एक को सोचा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा सोचा तो पहला नहीं होगा, क्योंकि पहला तो होगा ही होगा. क्योंकि वायलेंस को हटाने के लिए, डायरेक्ट वायलेंस को हटाने के लिए हमें ये वॉर का नहीं होना, वायलेंस का नहीं होना, फोर्स का नहीं होना, ये तो हमें क्लियरली दिखना ही चाहिए. तो साथ के साथ ये चीज़ें जो इन डेप्थ कारण हैं, जो दिख नहीं रही लोगों को, और जो काफ़ी समय से लोगों को हॉन्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, और जिसकी वजह से व्याप्त गरीबी, व्याप्त असमानता, व्याप्त बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें जो है बरकरार हैं, तो इन चीज़ों को हमें कम करना है. सो आई होप वी हैड गुड अंडरस्टैंडिंग, a general understanding, a brief understanding, which could just try to clear your concept on negative and positive piece. As I told you, since you have to go for offline exams, so it would be better if you try to focus on understanding the concepts, relating it with examples, rather than just reading from जो आपको मार्केट में जो चैम्पियन मिलते हैं, या फिर जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं बहुत ब्रीफ में, जिसकी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल भी नहीं होता, और सब अगर एक जैसे आंसर्स लिखेंगे तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड मार्क्स इन लॉन्गर टर्म ऑल्सो. एंड हाउ दिस पेपर इज़ हेल्पफुल इन योर अदर इंटर्नशिप्स ऑल्सो, और अदर आगे आप कोई इस तरह के जॉब या इस तरह के कोर्स में जाना चाहते हैं तो बहुत आगे ये हेल्पफुल भी होता है. आईआर से भी काफ़ी रिलेट करता है, और आपको चीज़ों को समझने में भी हेल्प करता है ओवरऑल, क्योंकि पूरा आधार जो है हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, और कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है तो पीस की बात करते हैं, और शांति पूरे विश्व के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो दिस पेपर इज़ वेरी हेल्पफुल. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड एनी इम्पॉर्टेंट thing to discuss with me, you can just put a comment. Whenever I am free, I will try to respond to that. And have a nice day, and God bless you, and keep connected to me. Okay, thank you.